السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا شیخ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 منٹ میں لوگ آئیں گے انشاءاللہ۔ شیخ آپ کے درس کی لنک کیا ہے شیخ؟ السلام علیکم۔ تو ہم شروع کر دیں گے، جو لوگ دیر سے آئیں گے بعد میں ریکارڈڈ دیکھ لیں گے۔ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے ہمارے شیخ نصیر، آپ کو جانا ہے نا، تو آپ کے 1 منٹ کا فائدہ اٹھائیں گے بہتر۔ آپ پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، 15 پوائنٹ نمبر 15۔ جی شیخ، تو لوگ دیر سے آئیں گے بعد میں ریکارڈنگ دیکھ لیں گے، ریکارڈ ہو انشاءاللہ جائے گا۔ اچھی بات ہے شیخ۔ پوائنٹ نمبر 15، انواع نجاسات، کون سی جی جی چیز نجس ہے اور کون سی چیز نجس نہیں ہے، اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ بسم اللہ جی الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ غفر اللہ ورحم شیخنا والقارئ والسامع وجمیع المسلمین۔ 15، آیا کتے کا صرف گوشت اور لعاب ناپاک ہے یا اس کا سارا جسم؟ جی ہاں، تو یہاں پر بھی فقہا میں اختلاف ہے۔ گوشت حرام ہے، اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لعاب ناپاک ہے، اس بارے میں بھی کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اس کا جو جسم ہے، سارے کا سارا جسم، تو وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیاس کرتے ہوئے خنزیر اور کتے کو ناپاک قرار دیا گیا ہے، اگرچہ کہ اس بارے میں کچھ تھوڑا سا اختلاف یہ ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے، اسی طرح بعض کا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں ہے، دلیل تلاش کیجیے۔ یا بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر کتا جو ہے کچا ہو، یعنی کہ اس کے اوپر پانی ہو، تو اس کے جو پسینے کے خطرات وہ پانی سے مل کر نجس ہو سکتے ہیں، لہذا وہ پورا جسم اس کا ناپاک ہو جائے گا، کہیں سے اگر وہ گزرے گا تو اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اگر وہ سوکھا ہو تو اگر کچھ مس ہو جائے تو ایسی بات نہیں کہ اب اس کو پورا دھونا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کے جسم کو ناپاک قرار دیا ہے جمہور نے، تو اگر آپ اتنی جگہ پر دھو لیتے ہیں کپڑے کو تو وہ احتیاط صحیح ہے۔ تو اس کی دلیل جو ہے وہی حدیث ہے کہ جب کتا جو ہے ترج- تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو، جی تو یہ جی، ترجمہ پڑھ لیجئے تاکہ حدیث کا ترجمہ ہے: جب کتا منہ ڈال کر پیے تم میں سے کسی کے برتن میں
تو बहा दे उसको फिर 7 बार धोए। और एक हदीस का। दूसरी हदीस है, उसका तर्जुमा, तुम्हारे बर्तन की पाकी जब कुत्ता उसमें मुंह डालकर पिए, ये है कि उसे 7 बार धोएं, पहली बार मिट्टी से। और तीसरी हदीस का तर्जुमा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कुत्ता तुम में से किसी के बर्तन में से कुछ पी ले तो उसको 7 मरतबा धो लो तो पाक हो जाएगा। तो इस तरह से अहादीस मौजूद है। यहाँ पर इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का फतवा ये है कि दलील की बुनियाद पर कुत्ते का लुआब नापाक है और उसके जिस्म के तमाम अज्जा कयास की बुनियाद पर नापाक है, तो बाकी के सारे अज्जा भी जो है नापाक करार दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16, आया गधे का गोश्त ही नापाक है या उसका तमाम जिस्म? हाँ, तो इसीलिए मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये टॉपिक बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज नजिस है और कौन सी चीज नजिस नहीं है, जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अकल या हमारे मुआशरे में बात चीजों को हम नजिस समझते हैं, जबकि शरीयत में वो चीज नजिस होना जरूरी नहीं है। और कुछ चीजों को हम नजिस नहीं समझते लेकिन शरीयत में वो नजिस होती है। तो लिहाजा शरई पैमाने पर फैसले लेना है दलील की बुनियाद पर। अब यहाँ पर देखिए, गधा, उसका गोश्त हराम करार दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं, अल-हुम्र अल-अहलिया के नाम से हमको बहुत सारे अहादीस मिलते हैं कि सहाबा कराम पहले इजाजत थी तो वो बना रहे थे, गोश्त जो है पका रहे थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज से ये हराम है, तो एक सहाबी जाकर ऐलान करते हैं कि पालतू जो गधे हैं उनको हराम करार दिया गया है। तो तभी सहाबा इकराम इतने मुत्तबिअ थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और सही हदीस, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती तो फौरन अमल पैरा हो जाते। समिअना व अताअना, ये उनकी कैफियत थी और उन्होंने फौरन वो सारे देगें उलट दी गई। तो इससे पता चलता है कि पालतू गधा जो है हराम है और उसका गोश्त भी नापाक है। जो चीज हराम है उसकी गोश्त भी नापाक है और उसका लीद भी नापाक है, क्योंकि और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ जाकर 3 ढेले लेकर आओ। तो सहाबी कहते हैं कि मुझे सिर्फ 2 ढेले मिले, जब तीसरा नहीं मिला तो मैंने उसकी जगह पर लीद, गंदगी, टॉयलेट उठा लाया मैं, गधे का था वो। हदीस दूसरे अहादीस में आता है कि वो गधे का था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको फेंक दो, आपने फेंक दिया। कहा कि ये तो रिक्स है, रिच है, ये तो खुद गंदगी है। तो इससे दलील मिली कि उसका लीद भी नापाक है। और अब सवाल ये उठता है कि गधा जो है उसका गोश्त भी हराम है और उसका लीद भी नापाक है, तो ये कौन सा गधा मुराद है? ये पालतू गधा। पालतू। लेकिन एक होता है जंगली गधा जिसको हम जेबरा कहते हैं, इंग्लिश में पट्टे पट्टे रहते हैं। तो उलमा इकराम ने जेबरा को कहा कि वो हलाल है क्योंकि वो अल-हुमुरुल अहलिया में से नहीं है, बल्कि वो अल-हुमर अल, उसको आप कहते वहशिया। हैं, उसको आप कहते अलवहश हैं कि वो जंगली अलवहशिया। वहशिया जंगली जानवरों में से है। तो जंगल में जो मिलते हैं वो आपको जेबरा, तो वो खाने की इजाजत है। बाद साहबा इकराम ने खाया भी था, हज के अहादीस में आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अब जो गधे को का गोश्त और उसका लीद, इसको तो उलमा इकराम ने नापाक तस्लीम कर लिया, अहादीस डायरेक्ट मौजूद है। लेकिन गधा पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी करते थे, इससे दलील लेते हुए कहा उलमा कराम ने कि उसका जिस्म नापाक नहीं है, क्योंकि गधे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो गधे थे उनका नाम क्या था? दुलदुल था और फिद्दा था। दुलदुल था और फिद्दा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खच्चर भी थे, याकूर और उफैर नाम था। तो इसका मतलब निकला कि इनके जिस्म पर सवारी करते थे। इससे पता चला कि अगर गधा जो है मुंह डाल दे पानी में तो उससे पानी नापाक नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में जहां बोरिंग होती है तो वहां पर गधे भी आकर पीना शुरू कर देते हैं। धोबी के गधे अक्सर छोड़ दिए जाते हैं गांव में, आपने देखा होगा कि वो कहीं पानी में आकर बैठ जाते हैं, घड़ों में आकर मुंह डालने की कोशिश करते हैं, तो उससे नापाक नहीं हो जाता, क्योंकि दलील उसकी दी उलमा कराम ने कि इनसे बचना मुश्किल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी करने से भी इस्तेदलाल किया गया। तो इसलिए उसका तमाम जिस्म
नापाक नहीं है। इसलिए यहाँ पर दलाइल है पूरे उसके, गुफ्तगू है, और कहाँ कहाँ उलमाए कराम ने कहा, कौन सी उसकी दलील है। अगर डिटेल में कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जी। गधे पढ़िए, नंबर 17 जी। या ऊपर से नोट्स पढ़ लेते हैं जी। हाँ। जी शेख। नोट: गधे की लीद के नजिस होने के लिए वाज़ेह नस है, इसलिए वो नजिस है, लेकिन उस पर कियास न किया जाए। ये इमाम ये शौकनी शौकानी रहमतुल्लाह का रहमतुल्लाह कहना का है। कौल है कि कयास ना किया जाए, इमाम शौकानी रहमतुल्लाह का कौल है, लेकिन जमहूर ने कियास की इजाज़त दी है, जैसा कि गैर माकुल लहम में 13वां मसला में इजमा के हवाले के साथ तफसीली बहस गुजर चुकी है। गैर माकुल लहम का अगर लीद या उसका टॉयलेट या उसका पाखना अगर लग जाए तो धोना जरूरी है। और इस पर सारे हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, सारे जमहूर का यही कौल है। तो लिहाजा इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की बात को कबूल ना नहीं किया है आज के मुआसिर सारे उलमाए किराम ने। नोट: गधे का गोश्त नापाक है, लेकिन उसका जिस्म नजिस नहीं। हाँ, उसका क्योंकि दलील नीचे बहुत सारे दलाइल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के बारे में क्या कहा कि तुम्हारे अतराफ घूमने वाली है। तो गधे का भी ऐसे ही है कि इंसानों की खासी जरूरत है, इनसे बचना मुश्किल है। और कुरान मजीद में भी है, वल खैला वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वजीना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवारी करना, ये सब दलाइल है नीचे जो जिक्र किए गए। नोट। गधे और खच्चर का बचा हुआ झूठा पाक है, और इसी तरह उनका पसीना नजिस नहीं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम उनकी सवारी किया करते थे, और अगर उनके जिस्म नापाक होते तो उसकी वजाहत वारिद होती। पॉइंट नंबर 17। 17: अल जल्लाला यानी नजासत खोर जानवर, वो जानवर जो गंदगी खाते हैं। नजासत खोर जानवर का क्या हुक्म है? नोट: जब तक कि उसको बांध कर पाक गिदा न खिलाए, जल्लाला नजिस के किस्म में है। जल्लाला उस जानवर को कहते हैं जो मेंगनिया और लीद खाता है, और ये उस सूरत में नजिस जानवरों की कबील से खारिज होगा अगर उसको गिजा बंद करते हुए कुछ दिन बांध कर रखा जाए। हाँ, तो जैसे मुर्गी है, बाज औक़ात आप देखते हैं कि कोई वहां पर मुर्दार चीज है, मुर्गी खाना शुरू कर देती है। तो जाहिर बात है ऐसे मुर्गी को आपने देखा होगा गांव में कि उसके पैर को बांध दिया जाता है ताकि वो ना जाए, उसको सिर्फ पाक ग़िज़ा खिलाई दी जाती है। 2-3 दिन के अंदर अंदर फिर वो सफाई हो जाती है। तो 3 दिन के बाद लगभग उलमाए कराम ने कहा कि उमूमन आदतन 3 दिन काफी हो जाते हैं उसके पेट की सफाई के लिए। तो ये तफसीली तौर पे इसमें दलाइल हैं। जानवर भी कभी जल्लाला हो जा सकता है। उसके अलावा भी जैसे बकरी है, उसने कुछ खा लिया, आपको शक हो जाता है, तो ऐसे वक्त पर जो है ना, वो जल्लाला कोई भी हो सकता है। इसलिए उस पर सवारी करने से मना भी क्या, जो नजासत खोर होते हैं, जब अगर उस पर सवारी करने से भी मना किया गया, क्योंकि उसके पसीने के अंदर से फिर वो चीजें भी आ सकती है। लेकिन बाद लोगों ने कहा कि मुर्गी जो है उतना ज्यादा नहीं खाती है, तो लिहाजा माफुआ ने उसके लिए हदीस भी पेश की है मैंने इस किताब में। लेकिन अमूमन फतावा में बात जिक्र की गई है कि नजासत खोर की सफाई जरूरी है। पॉइंट नंबर 18। 18: बिला खून वाले हशरात और जानवर, मसलन मक्खी, चींटी और मकड़ी। शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह का कौल: जी। जवाब: जिस जो जिस जानवर में बहता खून ना हो तो वो पाक है। हाँ, ये उसूल बताया शेख इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने। उसूल बताया क्योंकि दमम मसफूहा से इस्तेदलाल करते हुए कहा कि वो दम जो बहे बड़ी मकदार में ना, तो वो हराम है। जब इसके अंदर खून है ही नहीं, और जब मारते हैं तो नुक्ते की शक्ल में निकलता है, कोई मसफूहा का इसके अंदर माना नहीं होता, तो लिहाजा इनको जो है नजिस में शुमार नहीं किया गया है। और इससे बचना भी मुश्किल है, ये भी एक दलील है कि इनसे बचना मुश्किल है, इंसान के लिए मुश्किल हो जाएगी अगर। क्योंकि होता है कि कभी जो है हशरात, जानवर, तो आपने देखा होगा कि गिरगुट जो है गुजर जाते हैं मस्जिदों में, गांव की मस्जिदों में, या जो जंगलात में होते हैं तो चूहे गुजरते हैं, मेंढियां डाल देते हैं। अब अगर ये कहा जाए कि नहीं, ये चूहा हराम है, और इसी तरीके से ये गिरगुट, ये चिपकली, ये सब हराम है, अगर ये जो है हमारे जायनमाज से गुजरे तो सबको धोना है, तो एक
पूरे मुअज्जिनों में से फिर एक को खाली धोने के लिए रखना पड़ेगा रोजाना, और बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रातों में कितने वहां से जो हशरात गुजरते हैं हमको पता भी नहीं है। तो जानवर भी गुजर जाते हैं, कभी बिल्ली गुजर जाती है। तो इस वजह से बिल्ली के बारे में तो वाज़ेह है कि ये तो आने जाने वाली है, तवाफ करने वाली है, तो लिहाजा हशरात है और कीड़े मकोड़े, बहुत सारे ऐसे हशरात हैं जिनकी खबासत की वजह से उनको हराम करार दिया गया, लेकिन वो उनको नजिस में शुमार नहीं किया गया क्योंकि उससे बचना मुश्किल है। तो इस वजह से कहते हैं कि भाई आपको अगर कहीं मेंढिया नजर आते हैं तो उसको ले जाकर फेंक दीजिए, चूहा गुजर जाता है। अलबत्ता जो है बाद उलमा फुकहा ने मैंने देखा कि उन्होंने ये कहा कि बाज गांवों के जो गिरगुट होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि उनके अंदर खून जो है, सरों के अंदर खून भरा हुआ होता है और बहता है। तो अगर ऐसा कोई खास गिरगुट, ऐसा कोई खास जानवर जिसके अंदर बहुत ज्यादा खून बहने वाली कैफियत हो, तो बाद उलमा इकराम ने उसको मुस्तस्ना करार दिया। लेकिन अमूमी तौर पर गिरगुट और ये जानवर, ये जो चिपकली होती है, चूहा होता है, इन सब के गुजरने की वजह से जायनमाज को धोना है ऐसी बात नहीं कही जाएगी। माफ है। जी। या 19। 19। जंगली जानवरों का गोश्त नापाक है या उनका तमाम जिस्म भी? जवाब: असल यह है कि उनका जिस्म पाक है जब तक नापाकी की दलील साबित ना हो जाए। हाँ, जंगली जानवरों का गोश्त नापाक है या उनका तमाम जिस्म भी। तो यहाँ पर भी जो है उलमाए कराम ने जो है काफी तफसीली तौर पे आप देख रहे हैं कि इसमें दो अकवाल पाए जाते हैं। एक ने कहा कि पाक है, एक ने कहा कि नापाक है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर जंगली जानवरों के जिस्म को भी नापाक करार दे दिया जाए तो गांव वाले लोग काफी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर गांव में चील, ऐसे बहुत सारे परिंदे हैं, वो आते हैं और आकर पानी पी के जाते हैं। सिंटेक्स है, तालाब खुला हुआ है, या छोटे छोटे डब्बे भी पानी के रखे हुए होते हैं, और अक्सर आकर जो है छिपट के जाते हैं, या उनके पर जो गिर जाते हैं, चील के, कौवों के, ऐसे सारे जानवरों के, परिंदों के। और कई ऐसे जानवर हैं जो जाते जाते लगकर चले जा सकते हैं, गांव में ऐसा बहुत होता है। तो इस वजह से अगर ये कहा जाए कि इनके जिस्म जो है नापाक है तो बहुत मुश्किलात में पड़ जाएंगे, तो इंसान के बस की बात नहीं है। तो इसलिए आइए देखते हैं कौल को राज करार दिया लजना दाइमा ने। तो क्या कहा पढ़ी? दरिंदों की, शेख मौजूद है? आवाज जी नहीं। शेख। जी शेख। जी शेख। दरिंदों की। हाँ। दरिंदों की तहारत का मौक़िफ़ दायमी फतवा कमेटी के फतवा में शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह की सदारत में अपनाया गया है। चुनांचे उन्होंने कहा कि राजह मौक़िफ़ ये है कि भेड़िया, चीता और शेर जैसे दरिंदे और बाज व चील जैसे शिकार करने वाले परिंदे पाक होते हैं। यही मौक़िफ़ शरई दलाइल के मुताबिक भी है। इसी मौक़िफ़ को शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह ने राजह करार दिया है। चुनांचे आप अलैहिर्रहमा कहते हैं, आप अलैहिर्रहमा ने कहा कि सही मौक़िफ़ ये है कि दरिंदे पाक होते हैं, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि दरिंदे नापाक होते हैं तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त होगी, क्योंकि सहराई इलाक़ों में पाए जाने वाले कुओं में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पानी 2 कुल्लों से कम होता है, और ये बात यकीनी है कि दरिंदे और परिंदे उस पानी को पीने के लिए आते हैं। तो अगर हम कहीं ये थोड़ा सा पानी भी नापाक हो चुका है, अगर हम ये कहें ये थोड़ा सा पानी भी नापाक हो चुका है, तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा मशक्क़त होगी। और हमारी दानिस्त के मुताबिक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह के पानी के पास से गुजरते थे तो वहां से वुदू कर लिया करते थे। खुलासा: मंदरज बाला तफसीलात का खुलासा ये हुआ कि तमाम के तमाम जानदार जिंदा हों तो सब के सभी पाक हैं, चाहे वो माकुलुल लहम हो या दरिंदे हों या हशरात वगैरह से ताल्लुक़ रखते हों, सिवाय कुत्ते और खिंजीर के ये दोनों नजिस हैं। वल्लाहु आलम। 20। आपका टाइम हो गया सर। और है शेख, 6-7 मिनट बाकी हैं। खत्म करेंगे 20। जी। नंबर 20। बचा हुआ यानी खाकर बचाई गई झूठी चीज का हुक्म। अलिफ:
बचाई गई झूठी चीजों में कौन सी पाक और कौन सी नापाक हैं? नंबर एक, कुत्ते का बचा हुआ नापाक है। ये तो वादे है, लुआब की हदीस से जी। वादे दलील नोट, है। नोट पढ़ो शेख। जी। हदीस के अल्फाज तहूरु इनाइन, तहूरु इनाई तुम्हारे बर्तन की पाकी में इस बात की दलील है कि कुत्ते का लुआब नजिस है, इसलिए उसको बहाना और 7 मरतबा धोना जरूरी है, और उसमें पहली मरतबा मिट्टी इस्तेमाल करना जरूरी है। नंबर दो, गधे का बचा हुआ नापाक है। इसमें दो कौल हैं। कौल अव्वल, गधे का बचा हुआ नजिस है, नापाक है। फ़इन्नहा रिजसुन और नजिस, मुस्लिम शरीफ की हदीस। कौल थानी, बाद अहले इल्म ने कहा कि गधा और खच्चर का बचा हुआ पाक है, क्योंकि उमूम बलवा किसी अम्र का लोगों के दरमियान इस तरह आम होना कि उससे बचाव व हिफाजत मुश्किल का बाइस बनती हो, की वजह से उससे बचना मुश्किल है। इस कौल में वजह इस्तिदलाल कवी है, अल्लाहु आलम। तीसरा, खिंजीर का बचा हुआ नापाक है। कि तो चौथा, है सूर्य नाम में। जी, चौथा, जंगली जानवर का बचा हुआ पाक है या नापाक? कौल अव्वल, एक तहकीक के मुताबिक जंगली जानवरों का बचा हुआ नापाक है। नोट, शेख अलबानी और इमाम नववी रहमहुल्लाह ने हदीस में कुल्लतैन की कैद से इस्तेदलाल करते हुए कहा कि उससे जंगली जानवरों की बची हुई झूठी चीजों के नजिस होने का सबूत मिलता है। कौल थानी, नोट, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक जंगली जानवर का बचा हुआ और पंजों के जरिए शिकार करने वाले परिंदे का बचा हुआ नजिस है, और इब्ने बास का कौल है कि नजिस नहीं है। जी हाँ। तो बहरहाल इसमें जो है ना, जो तरजीह दी है अक्सर आज के दौर के कसीर उलमाए कराम ने, कि जंगली जानवरों का बचा हुआ, जैसा इससे पहले भी शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह का कौल गुजरा कि बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम कहेंगे कि चील वगैरह आकर पानी पी के जाए, पूरा पानी बहा दो। ऐसा कहना मुश्किल है, तो लिहाजा शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह के कौल को तरजीह देने की नीचे बहुत सारे मैंने दलाइल दिए हैं। उसमें से यह देखिए, आसार वन, यहाँ पर पूरा डिटेल में ये मालिकिया, शाफिया और रिवायतन अहमद, और इसी तरह इब्ने मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह ने, इब्ने हतम, इब्ने उथैमिन, यहाँ तक के लजना दाइमा का फतवा भी इसकी तायद में है। तो लिहाजा ये ज्यादा आसानी है लोगों को इस फतवे में। पांचवा, माकुलुल लहम। माकुलुल्लहम, हलाल जानवर का बचा हुआ पाक है। जब ज़ाहिर बात, हलाल जानवर, ईद, जी, उसका गोबर ही को हमने पाक कह दिया, तो फिर बचा हुआ तो कहना बदरजा वाला पाक है। पढ़िए, जब हलाल। जब हलाल जानवर का गोबर और लीद नजिस नहीं है और नमाज के लिए रुकावट नहीं है, तो बचा हुआ तो बदरजे औला पाक होना चाहिए। एक एक सहाबी ने कहा, इन्नी लताहता नाकतिन, नाकति रसूल। नाक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसीलु अला लुआबिहा। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी वो थामे हुए थे और उसका लुआब उनके जिस्म पर गिर रहा था। तो अगर जी। वो नापाक होता तो उस बारे में हमें कोई इरशाद मिलता। सही इब्ने माजा। पांच, पांच, नंबर पांच, पांच तकरार हो गई थी। जी, आदमी का बचा हुआ पाक है, चाहे वो मुसलमान मर्द औरत का हो या गैर मुस्लिम का। हाँ, इसीलिए गैर मुस्लिम, एक दाई ने जो गैर मुस्लिम का बचाव पिया तो वो फौरन उसने कलमा पढ़ लिया। कहा कि भाई आप लोगों के पास कुछ भी भेदभाव नहीं। जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। जी। दलील, हदीस पढ़ो, इन्नल हदीस पढ़ो, नहीं लायन, आगे बढ़ो। एक तो दलील ये मिली। दूसरे और भी जी, अहादीस है यहाँ पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाइदा होती, आप कहते कि जाओ जाकर जाए नमाज लेकर आओ, तो उन्होंने कहा मैं तो हैज में हूँ। कहा तुम्हारे हाथ में तो हैज नहीं है। तो आज के दौर में जो है बड़े बड़े फिल्में बनाई गई है ये साबित करने के लिए कि जब औरत हैज में होती है तो वो नजिस नहीं है। वरना कई गांव में ऐसा था कि औरत 7 दिन तक जो है ना, उसके उसके कपड़े को भी अगर हाथ लगा देती तो उसको वो लोग कहते थे कि बहुत ही नापाक। तो जिंदगी पूरी मुश्किल हो गई थी। यहाँ पर देखिए, बहुत पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया था जो लोगों में
मशक्कत और तकलीफ का बायस बना हुआ था। अभी हाल हाल ही में अभी भी हिंदुस्तान में हैज वाली औरत को लोग नापाक समझते, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे जाओ जाकर जाए नमाज लेकर आओ। उन्होंने कहा कि मैं तो हैज में हूँ। कहा कि तुम्हारे हाथ में तो हैज नहीं है। यानी कितनी बड़ी गलत फहमी यहाँ पर तोड़ दी गई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जहां पर उन्होंने आप अपना मुंह वहां रख कर पीते जहां मैंने रख कर पिया था, ये आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं। रुपए जो है खर्चा करके फिल्में बनाई जा रही, लोगों को अवेयरनेस में लाने के लिए मेडिकली ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई भी तुम हाइज में हो तो औरत जो दूसरा उसकी नापाक की दूसरी की तरफ जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है समझाने के लिए। लेकिन हमको इस्लाम जो है फ्री में तालीमात देता है, लोग करोड़ों के बाद भी वहां तक नहीं पहुंच पाते। और और एक भी है ना मशहूर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवद्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जी वसल्लम मिन जी। मजादती मुश्रिका। बुलुल हम्म, मराम में भी है पूरे, जो जितने भी उलमा इकराम बुलुल मराम पढ़ते हैं तो सबको याद रहती है ये हदीस। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुशरिक औरत के मटके से पानी लेकर आपने वुजू किया। इसका मतलब मुशरिक औरत जब मटका भरेगी तो उसका हाथ लगेगा, उसकी उंगलियां भी उसमें जाएंगे, उसके बावजूद भी उसको नापाक। तो औरत का हाथ लग गया, मुशरिक औरत का हाथ लग गया, तो उसमें वो पीते भी होंगे वो मटके में, उसके बावजूद भी नापाक करार नहीं दिया गया। नोट पढ़ो शेख। हाँ पढ़िए, नोट अच्छा है। गैर मुस्लिम का ग़िज़ा और पानी को छूना उन्हें नापाक नहीं बनाता। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अहले किताब का खाना हलाल होने की दलील मौजूद है। हम जाके इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं शेख ये तो गैर मुस्लिम हजरात है, क्या हम इनके होटल में खाएं या ना खाएं। तो गैर मुस्लिम का जो पसीना होता है, उसका हाथ लगना, ये उसकी जो नजासत है वो मानवी नजासत है। कुफ्र की जो नजासत है, शिर्क की जो नजासत है वो मानवी है, हिस्सी नहीं है। तो इस वजह से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अहले किताब का खाना, उसके उनके घर से खाना खाया करते थे, इस बात की दलील है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तो बहुत ही पावरफुल इस्तिदलाल पेश कर दिया। उससे डायरेक्ट हदीस भी है, इस हदीस पर काफी तफसीली गुफ्तगू थी मुल्तका हदीस में, तो वो भी मैंने नकल कर दी है अहले इल्म के लिए। जी तो शेख। ये तो है माशाअल्लाह छठा। शेख, कोई है? अल्लाह अकबर। जी जी। कोई एक साहब थे, चले गए हैं लगता है। मैं ईशा का वक्त हो गया शेख, यहाँ पर अल्लाह आप जज़ाय खैर दे आपको। आप जाइए इंशाअल्लाह, तशरीफ ले जाइए। मैं पढ़ लेता हूँ बाकी का अगर कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्ली का झूठा पाक है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट हदीस है, इसमें कोई कोई जो है इसमें अख्तलाफ की गुंजाइश नहीं। अलबत्ता इसमें बारे में अख्तलाफ पाया जाता है कि अगर आपने देखा कि बिल्ली ने चूहे को खाया, उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और वो फौरन आकर पानी में मुंह डालती है, तो तब जो है बचने की जो वजह है वो खारिजी वजह है। उसकी जो वजह है वो खारिजी वजह है। लेकिन बजाते खुद बिल्ली का झूठा वो पाक है, ये ध्यान में रखें आप। तो खारिज वो तो वैसे तो हम देखते हैं छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो है या इंसान है या बीवी भी है, तो अब छोटा बच्चा है, अगर उसके जिस्म पर पाखना लगे तो हम क्या बोलते हैं, पाखने की वजह उसको सफाई कीजिए भाई। आज बच्चा है आपका 7-8 साल का, उसको अगर पाखना लग जाए तो आप कहते हैं उसको सफाई करो। लेकिन उसकी वजह से ये नहीं कहा जाएगा कि उसका झूठा जो है नापाक है। तो ये खारिजी मसला है, पाखाना लग जाना है खारिजी मसला है। तो इसी तरह अगर बिल्ली के मुंह पर खून लगा हुआ है चूहे की वजह से, और उसका टाइम अभी अभी है और एक लंबा टाइम गुजर गया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बिल्ली जो है नॉर्मल है, दूध पी रही है, उसके बाद आपके पास आई है, तो यहाँ पर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है। तो इसमें भी बहुत सारे डिटेल है। इसी तरह सातवां मसला है मनी पाक है, तो इस बारे में भी अख्तलाफ पाया जाता है, और जो अख्तलाफ करते हैं आज भी वो कहते हैं कि मनी जो है नापाक है। तो लिहाजा वो अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं, जो जिनके दलाइल, अगर उनको अपने दलाइल पर इत्मीनान है। लेकिन सऊदी अरब के देखिए इतने उलमा कराम है, सहाबा से अगर देखे तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इसहाक बिन राहवै, इमाम दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हज़म, इब्न तैमिया, इब्न हजर, इब्न बाज, शेख अलबानी, वहबा, जुहैली, अमीर सनआनी, सबीह अल्लाह और सऊदी अरब के 40 उलमा की टीम, इन सब ने कहा कि मनी पाक है।
اور اس میں بہت دو طرف بھی میں نے دلائل اس لیے دیے ہیں کیونکہ جو منی کو ناپاک کہتے ہیں وہ بھی بڑے سختی کے ساتھ اس پر نہ صرف قائم ہے بلکہ کتابیں لکھتے ہیں کہتے ہیں ناپاک ہے، تو اس وجہ سے دونوں کے دلائل تو میں نے دے دیے ہیں، لیکن اینڈ میں نے جس چیز کو اگر کوئی پوچھتے ہیں آپ کی رائے کیا ہے، ہم اپنی رائے کسی پر تھوپ تو نہیں سکتے، کسی کو لازم نہیں کر سکتے اور کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی رائے کیا ہے تو منی جو ہے پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جو پیدا ہوا ہے، اگر ہم کہیں گے کہ منی جو ہے ناپاک ہے تو اس ناپاک سے پیدا ہونے والا انسان اس کو بھی ہم ناپاک کہنا پڑے گا، تو یہ بھی ایک دلیل ہے بہت سارے دلائل میں سے۔ اور اسی طریقے سے کپڑے کو جو ہے صرف جب کھرچ دیا جاتا تھا، منی اگر ہو کچی ہو تو دھو دیا جاتا تھا، اس کے آثار رہتے تھے۔ ایسے بہت سارے دلائل ہیں جس سے استدلال کیا علماء کرام نے، میری کتاب میں ڈیٹیل میں ہے کہ وہاں پر صرف کھرچ دیا جا رہا ہے، پانی سے دھونے کو لازم نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس سے اگر منی کا کوئی خطرہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رہ گیا ہے، سوکھا ہے، ابھی میں نے پانی سے نہیں دھویا ہے، نماز پڑھ لی ہے، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ناپاک میں شمار نہیں کیا گیا ہے۔ تو اسے کہتا ہے الحال المنی اذا وقع على الثياب نجس فاجاب الاصل فيه الطهارة ولا نعلم دلیلا على نجاسته، اصل یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو ہم ناپاک کہنا ہے تو دلیل چاہیے، تو اصل یہ ہے کہ پاک ہے، اور کوئی دلیل نہیں معلوم کہ جو کہتی ہو کہ یہ نجس ہو۔ منی کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے، ہمیں اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ اسی طرح شراب کے بارے میں کہ شراب جو ہے اس کی نجاست معنوی ہے، لیکن اگر شراب کا کوئی خطرہ کپڑے پہ لگ جائے کہیں پر تو اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلیل دیتے ہوئے کہا کہ مدینے میں جو شراب بہ گئی، جب صحابہ کرام نے ساری شراب بہا دی تو مسجد میں بھی آئے، اس کے بعد وہ لوگ کپڑوں پر لگا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آج شراب بہی ہے تو لہذا سب لوگ اپنے کپڑے دھو کر آؤ، ایسا نہیں کہا گیا، تو اس سے بھی دلیل لی گئی ہے۔ اور اسی طرح اب یہاں پر ایک مشہور مسئلہ ہے کہ الکوحل میں جو ہے نا، الکوحل جو ہے یہ مشہور اتنا ہو چکا ہے، دراصل یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے نشے کو یا اسی طرح خوشبو کو پریزرو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو الکوحل بذات خود جو ہے نا یہ نشہ لاتا ہے، ایسی بات ہے۔ الکوحل کی بھی کئی قسمیں کی گئی ہیں، کئی قسمیں ہیں، اس میں سے بعض الکوحل وہ جو نشہ لاتے ہیں اور بعض الکوحل وہ جو نشہ نہیں لاتے ہیں، تو اس وجہ سے پہلے یہ بھی فرق جاننا ضروری ہے۔ دوسرا ہے کہ اگر ولو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ یہ ایسا الکوحل ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا الکوحل ہے کہ جس کی خوشبو سنتے ہی آدمی کو نشہ آ رہا ہے، تو پھر ایسے الکوحل والے آپ عطر استعمال نہ کریں کہ جس کو سونگتے ہی نشہ آ جائے۔ لیکن اگر ایسا الکوحل ہے جس کے پینے سے نشہ آئے تو پینا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر جسم پر لگ جائے ایسی کوئی ایسا کوئی وہ سب کو لگنے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، جیسے وہ اگر کوئی سڑا ہوا کوئی آم ہے جس پر تھوڑی سی تو ہاں کلاس جب کھلی ہوئی ہو تو کوئی بات نہ کریں تاکہ ریکارڈنگ میں پرابلم نہ آ جائے، تو اس لیے میں نے اس میں دلیلیں دی ہے تفصیلی طور پہ۔ اس پہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست مقالہ تھا تمام المنہ میں، تو پھر میں نے وہ بھی نقل کر دیا ہے۔ تو کیا خیر نجس ہے؟ تو اس بارے میں بھی دو قول پائے جاتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شوقی رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ نظر آتا ہے کہ وہ خیر کو نجس نہیں مانتے، جبکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خیر کو نجس مانتے ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ واپس جب آتا ہے تو اس کے اندر پاخنے کی جیسی بو بھی آتی ہے بعض اوقات، تو یہ بھی دلیل لی ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس کے نکلنے کا جو مخرج ہے وہ منہ ہے، تو منہ سے نکل رہا ہے، نہ کہ پیخنے کے راستے سے نکل رہا ہے، پیخنے کے راستے سے نکلتا
तो वो तो नजिस होता, उसमें कोई शक नहीं। तो इस बारे में काफी इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए एहतियात करते हुए मुंह धो ले, साफ कर ले, ये कहा गया है। है कि अदम नजाकत के खारिज में काफी डिटेल है। हायदा और जुनूबी का पसीना पाक है, इस बारे में दलीलें गुजर चुकी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहब जैसे कहते हैं कि अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहाँ चले गए थे तुम? कहा कि मैं तो जुनूबी था और मैं जनाबत की हालत में आपके साथ बगैर तहारत के साथ बैठना मैंने पसंद नहीं किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल मुमिन ला यंजुस, के मोमिन जो है नापाक नहीं होता है। तो इन सब चीजों दलील लेते हैं कि हायदा और जुनूबी, इनका पसीना या इनका मेल जोल, ये कोई नापाक नहीं है। तो दलाइल है। 11वां, उन जानवरों या परिंदों के बचे हुए छूटे का क्या हुक्म है जो आदतन नजासत से नहीं बचते। जैसे बारीक मुख्तसर था, जैसे मुर्गी है, चोंच में जो गंदगी उठा लाई और लाकर जो है उसने बिस्तर पर फेंका, तो ऐसे चीजें माफ है, क्योंकि इसको कहते हैं यसीर, यानी इतना थोड़ा है, इतना थोड़ी मकदार में होता है कि जिसको उलमा ने कहा माफ है। क्योंकि अगर उतना, कभी चूहा भी जो लाकर कुछ ना कुछ फेंक जाता है तो ये बिस्तरों पर, तो ये सब चीजें माफ है, क्योंकि इंसान के लिए बचना मुश्किल है और इसकी मकदार भी बहुत छोटी है। तो ये थे चंद मसाइल के नजिस कौन सी चीज है और कौन सी नहीं है। तो इसके लिए माशाल्लाह 100 पेजेस में तफसीली तौर पर आपको, तो ये किताब उन लोगों के लिए काम आएगी जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं फिक्र और उलमा इकराम की इबारतें क्या है। तो अक्सर क्या होता है, इन्होंने कहा, लेकिन क्या कहा तो अक्सर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर हमने कोशिश की है कि अक्सर अरबी में इबारत दे, उर्दू में इबारत दे, अरबी में दे इबारत दे, उर्दू में। इख्तलाफ है तो मुख्तलिफ उलमा का कौल भी नकल किया, और जहां पर इख्तलाफ गंभीर है तो वहां पर तफसीली तौर पर दोनों की भी दलाल रखने की मैंने कोशिश की है। तो आइए अब हम चलते हैं हज बुक की तरफ। क्या हमारे पास कोई है जो हज के मसाइल पढ़ने के लिए तैयार है उर्दू में? नहीं है तो फिर मैं ही पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, मकाम इब्राहिम, उम्र का तरीका तो इससे पहले के हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म किया था। हज, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हज की 3 किस्में हैं: हज तमत्तु, हज क़िरान और हज अफराद। इफराद, आमतौर पर हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम हज तमत्तु ही करते हैं, इसलिए इस किताब में हज तमत्तु के अहकाम ही जिक्र किए जा रहे हैं। तो आप ही देखिए किस तरीके से जो है मीना की तरफ जाते, फिर मीना से जो है अरफात की तरफ जाते, फिर वापस मुजदलिफा, फिर मीना होते हुए वापस फिर मस्जिद हराम में आकर तवाफ करते। तो ये हज के दिनों में होने वाले अलग अलग काम हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितने किलोमीटर पर कौन सी चीज वाक़ है, ताकि आप प्लान कर सकें। तो आइए हम तरीका शुरू करते हैं। 25 काम करेंगे तो हज खत्म, 24 काम करेंगे तो उमरा खत्म, 25 काम करेंगे तो हज खत्म। और एक बात यह है कि लोगों के ध्यानों में आता है 40 दिन के लिए, तो पुराने जमाने से पहले तो शिप होता था तो 4 महीने के लिए जाते हैं लोग, समझते हैं हज 4 महीने का होता। ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हज मुश्किल से 6 दिन, और अगर स्पेसिफिकली है तो 4 दिन में जो है ना हज के काम खत्म हो जाते हैं। तो बाकी के जो है वो सफर के लिए होते हैं, मुख्तलिफ दूसरे जियारतें मदीना वगैरह के लिए होते हैं। तो हज को उतना लंबा चौड़ा ना समझे, और सिर्फ 24 स्टेप पूरा करेंगे तो उमरा खत्म, 25 स्टेप पूरा करेंगे तो हज खत्म। इस बारे में मेरे किताबें हैं, अलग अलग जबानों में भी है, आप वो पढ़ सकते हैं, वीडियो में भी है। आप हज स्टेप बाय स्टेप अरशद बशीर मदनी यूट्यूब पर लिखेंगे तो आप मदद क्या कर सकते हैं, जो हज को जा रहे हैं उनको चुन चुन कर ये अलग अलग जबानों में किताबें भेज सकते हैं। ऐप भी पहले वर्क कर रहा था, अभी नए कवानीन कुछ आए हैं तो ऐप शायद वर्क नहीं कर रहा है अभी। फिर से ऐप बनाना है इस साल। तो अल्लाह ताला डोनेशन पावर बढ़ाए ताकि हम फिर से नए ऐप बनाएं। पुराने ऐप 10 साल चले, अब उसके बाद अब काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि नए कवानीन आ चुके हैं, जिसके से पुराने ऐप काम नहीं करते। हज तमत्तो का तरीका, यानी हज तमत्तो का मतलब होता है कि उम्रा करने के बाद आदमी अपने वतन को नहीं लौटता बल्कि इंतजार करता है। फिर उसके बाद दरम्यान में जो ब्रेक लेते हैं, यानी एहराम उतार कर ब्रेक लेते हैं उम्रा हो जाने के बाद,
پھر حج کے دنوں میں پھر سے احرام باندھے، تو درمیان میں جو فائدہ اٹھایا وہ آدمی، پابندیاں اس کو جو نہیں لگی، اس کو تمتع یعنی فائدہ اٹھانا کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، نیت حج: 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ میں اپنے قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھے، یعنی جب 8 ذی الحجہ آ جاتی ہے، ذو الحجہ، اس کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں اپنے قیام سے حج کے لیے احرام باندھے، یعنی آپ کو میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے اور میقات سے ڈائریکٹ آ کر جو ہے وہ مینا جانا چاہتا ہے، جا سکتا ہے، یا سنت ہے طواف قدوم کرنا، ان کے لیے طواف کر کے اس کے بعد مینا جانا چاہتا ہے، یا ڈائریکٹ حج افراد کرنے والا میقات سے مینا جانا چاہتا ہے تو میقات سے بھی وہ بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تمتع کرنے والے تو آلریڈی یہ لوگ مکے میں ہے، ویٹ کر رہے ہیں، تو ان کو الگ سے میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو جو ہے باہر حل کہتے ہیں، حل یعنی کہ جیرانا مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر سے احرام باندھ کے وہ لوگ نکل جا سکتے ہیں سیدھا مینا کو۔ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں اپنے قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھے۔ نمبر دو، احرام باندھنے سے قبل غسل کرے اور اپنے جسم پر خوشبو لگائے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، آداب میں سے ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ نوٹ: احرام کے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائے، اور عورتیں نہ کپڑے پر خوشبو لگائیں اور نہ ہی جسم پر، تو احرام پر خوشبو نہ لگائیں۔ ہاں البتہ احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میقات سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے جسم پر میں خوشبو لگایا کرتی تھی۔ نمبر تین، تیسرا پوائنٹ، پھر حج کی نیت کرتے ہوئے یوں کہے: اللہم لبیک حجا، یا اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ نمبر چار، بلند آواز سے تلبیہ کہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھنا چاہیے: میں حاضر ہوں یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں اور تمام نعمتیں تیرے ہی جانب سے ہیں، ساری کائنات میں تیری ہی بادشاہت ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ پوائنٹ نمبر چار، ایک بار، یا اسٹیپ نمبر 5، ایک بار یہ الفاظ ادا کرے: اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعہ، تو یہ حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہ اے اللہ حج سے نہ دکھاوا مقصد ہے، نہ شہرت مطلوب ہے، یہ ادا کر سکتے ہیں آپ۔ مینا: جب مینا پہنچ جائے، پوائنٹ نمبر 6، پھر مینا پہنچ کر ظہر کی نماز ادا کرے، ساری نمازیں اپنے اپنے وقت پر قصر کے ساتھ ادا کرے۔ قصر کا مطلب ہے فجر تو 2 رکعت ہے، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ اب آئیے عرفات کے دن کا، اب یہاں پر آپ نے نماز پڑھتے ہیں، مینا میں آپ نے ایسا گزارا کیا۔ اب عرفہ میں دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 7، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کو طلوع آفتاب کے بعد، دیکھیں سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں، سورج نکلنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر و تحلیل لا الہ الا اللہ اور تلبیہ کہتے ہوئے، تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے ہوئے مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہونا۔ یہاں پر دیکھیں میں نے 9 ذی الحجہ ذکر کیا ہے۔ فضیلت: عرفہ کے دن سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں بندوں کو جہنم سے بکثرت آزاد کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ پھر ان حاجیوں کا ذکر فرشتوں سے فقریہ طور پر کرتا ہے اور پوچھتا ہے: بتاؤ یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرشتے جو یہ کہتے تھے، اعتراض کرتے ہیں: اللہ تم ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو زمین میں دنگا اور فساد کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنائیں گے، دیکھو یہ بندے کیا کر رہے ہیں، تو عبادت کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ انہوں نے فوراً ریئلائز کیا: قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان والوں سے اہل عرفات کا فخر انداز میں ذکر ہوئے کہتے ہیں: دیکھو یہ میرے بندے آئے ہیں، اور بڑی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، یہاں دیکھیں آپ، جس میں بندوں کو جہنم سے بکثرت آزاد کیا جاتا ہے عرفات کے دن، یہ فضیلت ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا جائز ہے، کیونکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رکھنے سے منع کرنے والی حدیث کو ضعیف کہا۔
لیکن مستحب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھیں، لہذا شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزہ نہ رکھنے کی صورت ہی میں عرفہ کے دن کی عبادت میں حاجی کو زیادہ آسانی رہے گی۔ اور صحیح مسلم میں روزہ نہ رکھنے کو مستحب ثابت کرتے ہوئے یوں باب باندھا گیا: عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے روزہ نہ رکھنا مستحب ہے۔ تو بات کوئی غلط فہمی ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے حرام ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے جو روزہ منع کرتے، لیکن بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے، عبادات پر طاقت رہے گی تو اچھی بات کریں گے، تو لہذا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ 9، میدان عرفات میں داخل ہونے سے قبل ممکن ہو تو وادی نمران میں قیام کرے، پھر ظہر کے وقت میدان عرفات میں حج امام حج کا خطبہ سنے، اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ بعد جماعت قصر دو دو رکعت کر کے ادا کرے۔ وادی نمرا میں ٹھہرنا اور مسجد نمرا میں آنا ممکن نہ ہو تو اپنے خیموں میں ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ بعد جماعت قصر دو دو رکعت کر کے ادا کرے۔ تو یہاں پر آپ کو جمع کرنے کی بھی اجازت ہے، جمع تقدیم، اور دو دو رکعت آپ پڑھیں گے، یعنی ظہر اور عصر دو دو رکعت پڑھیں گے، تو جمع اور قصر۔ پوائنٹ نمبر 10، ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد عرفات میں داخل ہونا اور جبل عرفہ، جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ میسر ہو وقوف کرنا، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے قرآنی اور نبوی دعائیں مانگنا اور درمیان میں تکبیر و تحلیل اور تلبیہ بھی کہنا۔ پوائنٹ نمبر 11، اس دن، اچھا 10 میں دیکھیں آپ، اس دن اس دعا کو پڑھنا چاہیے کیونکہ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کائنات کی بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہے اور ہر چیز پر خود رکھتا ہے۔ اور یہ دعا بھی ثابت ہے: انما الخیر خیر الآخرہ، بلا شبہ حقیقی بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔ البتہ تاخیر ہونے والے اگر 10 تاریخ کو طلوع فجر سے پہلے میدان عرفات پہنچ جائیں تو ان کا رکن بھی ادا ہو جائے گا۔ مسجد نمرہ میں نماز کے ساتھ نماز نہ ملے تو اکیلے یا جماعت بنا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ 8 ذی الحجہ اور 9 ذی الحجہ کے درمیان رات میں قیام منا واجب نہیں بلکہ سنت ہے، البتہ معمولی سمجھ کر نظر انداز بھی نہ کرے۔ مزدلفہ، پوائنٹ نمبر 11، غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب ادا کیے بغیر سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے۔ عرفہ سے روانہ ہوتے وقت بہتر ہوگا کہ وضو کر کے روانہ ہو، اگر مزدلفہ آدھی رات 12 بجے تک بھی نہ پہنچ سکے تو راستے میں ہی مغرب اور عشاء ادا کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 12، مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ قصر کر کے اکٹھا ادا کرے۔ پوائنٹ نمبر 13، رات آرام کرتے ہوئے گزارنا اور 10 ذی الحجہ کی نماز فجر معمول کے وقت سے تھوڑا پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ادا کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 14، نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں یا جہاں کہیں بھی جگہ ملے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے قبل خوب روشنی پھیلنے تک تکبیر و تحلیل کہنا، توبہ اور استغفار کرنا اور دعائیں مانگنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 15، طلوع آفتاب سے قبل سکون و وقار کے ساتھ تلبیہ کہتے ہوئے مینا روانہ ہونا اور راستے میں وادی محصر سے تیزی سے گزرنا چاہیے۔ کمزور عورتوں اور عمر رسیدہ اور معذور حضرات کے لیے آدھی رات کے بعد بھی مزدلفہ سے مینا جانا جائز ہے، لیکن کنکریاں سورج طلوع ہونے کے بعد ہی ماری جائیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں دلائل پیش کیے۔ قول کے مطابق سورج طلوع ہونے سے پہلے کنکریاں مارنا جائز ہے، اسما رضی اللہ تعالیٰ کے عمل اور فہم کی روشنی میں۔ نوٹ: ایسے مسائل میں احتیاط بہتر ہے، اختلاف سے باہر نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی کنکریاں ماری جائیں۔ مینا، پوائنٹ نمبر 16، 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے مینا پہنچے، مزدلفہ سے روانہ ہوتے ہوئے اپنے ساتھ کنکریاں رکھ لے یا مینا کے میدان سے بھی
ली जा सकती है जिनका हजम शायद चने के दाने से कुछ बड़ा हो। नोट, कंकरियों को धोना बिदात है। मजबूर इंसान कंकरी मारने के लिए दूसरों को नायब बना सकता है। देखिए, यहाँ पर नायब किसी और को बना सकते हैं आप कंकरियों में, लेकिन तवाफ, शबनबाज रहमतुल्लाह फरमाया के तवाफ या सई, इसमें जो है नियाबत नहीं होगी बाल कटाने में। तो क्या करना चाहिए? तो उसको कहा कि हम्माली करने वालों को लाया जाए और उस शख्स को उठाया जाए, और वो हम्माली करने वाले उसका तवाफ करवाएंगे, सही करवाएंगे, मदद करेंगे, व्हील चेयर पर ले जाकर ढकलने वाले उनकी मदद ली जाए। 10 जिलहिज्जा को ये 4 काम करने हैं: रमी, कुर्बानी, हलक या तकसीर, तौफ इफादा व सई। पॉइंट नंबर 17, रमी। तुलु आफ्ताब के बाद जमरा की तरफ रुख करके मिना सीधे हाथ की तरफ और मक्का बाएं जानिब रहे। सही मुस्लिम। बड़े जमरे को एक एक करके 7 कंकरे अल्लाह अकबर कहकर मारे और उसके बाद तलबिया बंद कर दे। तुलु आफ्ताब से कबल कंकरियां मारना जायज नहीं। अलबत्ता जवाले आफ्ताब दोपहर के बाद रात तक कंकरियां मारना जायज है। जमरात को सिर्फ कंकरी मारे, दूसरी चीजें फेंक कर मारना गलत है। नजदीक जाकर मारे। कंकरी का कुआं नुमा गड्ढे में गिरना काफी है, इसमें मौजूद खंभे खंभे को लगना जरूरी नहीं। पॉइंट नंबर 18, कुर्बानी। जमरा अकबा की रमी कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी करे और मुमकिन हो तो उससे कुछ पका कर खाए। इस गोश्त में गरीबों का जरूर ख्याल रखें। इनमें से खाओ और खाना, आयत है ना, इनमें से खाओ और कनात से बैठ रहने वाले और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। ऊंट और गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं। हदी के जानवर की इस्तेताअत ना हो तो अय्याम हज में रोजे और घर आने के बाद 7 रोजे रखे। हदी के लिए राजी बैंक में या हुकूमती सतह पर मंजूर शुदा इदारों में पैसे जमा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 19, हलक या तकसीर, यानी या तो पूरे बाल शेव कर देना सर के, या तो कटिंग करना। कुर्बानी के बाद हलक यानी सर मुंडवाना, या तकसीर हेयर कटिंग करवाए और एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहन ले। हलक अफजल और तकसीर जायज है, और हलक या तकसीर हाजी की सीधी जानिब से शुरू करें। खवातीन अपने सर के बाल आखिरी किनारे से पकड़कर एक और काट ले। पॉइंट नंबर 20, तवाफ इफादा और सई। मिना से मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ इफादा करे। इस तवाफ इफादा में इस्तिबा और रमल ना करे, क्योंकि साबित नहीं, क्योंकि आम तवाफ के साथ चक्कर बाद 2 रकात नमाज साबित है, इसलिए तवाफ इफादा के बाद भी 2 रकात नमाज पढ़ ले, जमजम पी ले और थोड़ा सर पर डाल ले, फिर सफा और मरवा की सही करे और मक्का मुकर्रमा से मिना वापस आ जाए। नोट, इन कामों के आगे या पीछे होने में कोई हर्ज नहीं, लिहाजा तरतीब छोड़ने से दम बकरा जबा करना वाजिब नहीं होता। नोट, 10 तारीख को जमरा कुबरा को कंकरियां मार लेने से हाजी पर एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाती है। सिर्फ हाजी अपने बीवी से हमबिस्तरी नहीं कर सकता, अलबत्ता तौर जियारत और सही कर लेने के बाद बीवी से हमबिस्तरी करना भी जायज है। एक दूसरे कौल के मुताबिक 10 तारीख के 4 कामों में से कोई 2 काम करने के बाद ही एहराम उतारकर सादा लिबास पहन सकता है, और आखिरी काम कर ले तो बीवी से हमबिस्तरी भी हलाल हो जाएगी। रहमतुल्लाह अलैह का फतवा। मुलाहजा, एहतियात का तकाजा यह है कि 2 काम करने के बाद ये एहराम खोले ताकि अख्तलाफ से बचा जाए। अगर किसी ने एक ही काम करने के बाद एहराम खोल दिया हो या एहराम की पाबंदियों का एहतमाम ना किया हो तो कोई कफ्फारा दम लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एहराम खोलने या तहल्लुल अव्वल, एहराम की पाबंदियों से आज़ादी के लिए 4 में से एक काम काफी है। जहां तक बीवी से हम बिस्तरी की इजाजत का मसला है, वो 4 काम करने के बाद ही हलाल है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। नोट, इस मसले में एक बात का ख्याल रहे कि 10 जिलहिज्जा को कंकरियां मारने के बाद हाजी एहराम निकाल कर आम लिबास पहन सकते हैं, लेकिन अगर रात हो जाए और वो तवाफ जियारत ना कर सके तो ऐसी सूरत में फिर एहराम बांधकर तवाफ जियारत करेगा, और तवाफ जियारत के बाद एहराम उतार कर आम लिबास पहन सकता है। नोट, अगर किसी ने मगरिब के बाद एहराम दोबारा नहीं बांधा और आम कपड़ों में ही तवाफ जियारत कर लिया तो बाद उलमा इकराम ने कहा कि जायज है, क्योंकि एहराम दोबारा बांधना फर्ज नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं। 11, 12, 13 कैसे गुजारे? जुल्हिज्जा की 11 और 12, 13, 21। पॉइंट नंबर 21, अय्याम तशरीक 11, 12, 13 की रातें मिना में गुजारना।
اور ان دنوں میں زوال آفتاب کے بعد جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی بالترتیب رمی کنکریاں مارنا چاہیے۔ یہاں پر آج کے دور میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مینا میں جگہ ختم ہو گئی، تو اب کیا وہ بندہ مزدلفہ میں اگر وہ رات گزارے، نیت مینا کی ہے لیکن مزدلفہ میں جگہ ملی، تو کیا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر مینا میں اس کو جگہ نہیں ملی تو وہ معذور ہو گیا، اب وہ مجبور ہو گیا، تو لہذا وہ کہیں بھی چاہے عزیزیہ میں ہی گزارے چاہے مزدلفہ میں، کہیں پر بھی اگر وہ گزار لے تو اس کی نیت تو مینا کی ہے، لیکن وہ تو چاہ رہا تھا کہ مینا میں جائے لیکن اس کو جگہ نہیں ملی، تو یہاں پر اس کے استطاعت سے چیز باہر ہو چکے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو عزیزیہ میں یا کہیں پر بھی اگر مزدلفہ کے آخری حصے میں بھی اگر کہیں پر بھی گزار لے تو جائز ہے۔ لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں پر مینا کے ٹینٹ ختم ہو رہے ہیں، تو جیسے مسجد میں نماز چلتے رہتی صف متصل ہوتے رہتے ہیں، تو ویسے ہی آپ کو آخری ٹینٹ کے بعد ہی جانا چاہیے، زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اتنی سختی کی دلیل نہیں ہے، ایک مرتبہ جب مینا میں جگہ نہ ملی تو اس شخص کے لیے چھوٹ مل گئی، اب وہ کہیں پر بھی قریب میں گزارے، درمیان میں اگر وہ گیپ بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 22، جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں مارنے، رمی کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا چاہیے، لیکن جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعائیں مانگے بغیر واپس پلٹانا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جس حاجی کو گنتی میں شک پڑ جائے تو جس گنتی پر اسے یقین ہو اس پر اعتماد کرتے ہوئے باقی کی گنتی مکمل کرے۔ پوائنٹ نمبر 23، 23، قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ مکہ جا کر طواف کرے، صرف طواف کرے، سعی نہ کرے۔ مسجد خیف میں با جماعت نماز ادا کرے۔ مسجد خیف میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی تھی، تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے یہاں پر۔ بکثرت تحلیل و تکبیر، حمد و ثنا، توبہ استغفار اور دعائیں مانگنے کی کوشش کریں۔ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں باتوں میں، غیبت میں، چغل خوری میں، سے بچے سوشل میڈیا میں۔ پوائنٹ نمبر 24، 12 ذوالحجہ کو مینا سے واپس آنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل مینا سے نکل جائے، اگر مینا سے نکلنے سے پہلے سورج غروب ہو جائے تو پھر 13 ذوالحجہ کو زوال کے بعد رمی کر کے مینا سے واپس آنا چاہیے۔ تو یہ 24 کام ہے۔ 25واں کام یہ طواف وداع۔ 25، گھر رخصت ہونے سے قبل مکہ معظمہ پہنچ کر طواف وداع ادا کرے، قول اول۔ بعد حاجی حج کے بعد جدہ وغیرہ جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ طواف وداع کر کے جدہ جائے، پھر جب گھر جانا ہو تو طواف وداع دوبارہ کرے۔ شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ قول ثانی، شیخ وسی اللہ عباس حفظہ اللہ کے قول کے مطابق اگر کوئی جدہ جا رہا اور یقینی طور پر اس کا واپس آنا ممکن ہو تو طواف وداع جدہ سے واپس آنے کے بعد اور یقینی طور پر نکلتے وقت کرے گا، یعنی طواف وداع کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مکہ سے حج کر کے نکلتے وقت آخری و وداعی عمل ہو۔ اصطلاح میں اسے نفر کہتے ہیں، یعنی یقینی طور پر نکلنا۔ جدہ کو جانا نفر یقینی شمار نہ ہوگا۔ نوٹ، حیض اور نفاس والی عورتیں طواف وداع نہیں کریں گی کیونکہ انہیں اس عمل میں چھوٹ ہے۔ نوٹ، اگر طواف زیارہ وطن لوٹنے سے کچھ پہلے کرتا ہے تو اس میں طواف وداع کی بھی نیت شامل کر سکتا ہے۔ اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی قربانی ایام تشریق کے اندر نہ دے تو بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ اس کو پھر دوبارہ دم دینا پڑے گا، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بعد میں لیکن تاخیر کرنے کی وجہ سے اس کو توبہ استغفار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ بلا اس نے تاخیر کیوں کی، 11، 12، 13 کے اندر ہی اس کو قربانی کر لینی چاہیے۔ نوٹ، حج کی قبولیت کے لیے مدینہ طیبہ جانا ضروری نہیں اور شرط نہیں، البتہ میں تو اس بات پر زور دوں گا کہ حاجی مدینہ طیبہ بھی جائے تاکہ وہ مدینہ طیبہ کی زیارت اور وہاں کے اجر و ثواب سے محروم نہ ہو، لیکن جو لوگ حج کی قبولیت کے لیے مدینہ طیبہ کی زیارت کو لازم تصور کرتے ہیں ان کا یہ خیال غلط اور بلا دلیل ہے۔ انشاءاللہ اس طرح کیا جانے والا حج قرآن و سنت کے طریقے پر مکمل ہوا۔ الحمدللہ، آپ لوگوں کو اس پہ کچھ سوال ہیں تو کر سکتے ہیں، میں اس وقت میں اب رخصت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری کلاس لمبی ہو گئی، طہارت کے مسائل اور حج کے مسائل دونوں گھرنے کے لیے کافی ٹائم ہوا ہے۔
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے عبادات اخلاص کے ساتھ کرنے، اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے طریقے کے مطابق متبع سنت ہوتے ہوئے اخلاص اور اتباع سے مالا مال ہوتے ہوئے عبادت کو عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے؟ جی نہیں شیخ۔ جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔